Bismillahirrahmanirrahim. Welcome back after this Eid vacation. I hope you have a very blessed Eid and you have enjoyed every bit of it. So as the Eid vacations are over, let's start our discussion again. So in continuation of our discussion on series of lecture on mechanics of solid, today we would be discussing inshallah the torsion. We have completed the deflection of beam by the double integration method, and it took about 4 weeks, about a month. And then we are also continuing our initial lecture on mechanics of solid. So this is the continuation of our discussion on the post-midterm discussion, and in that we have already completed the deflection of beam by the double integration method, and inshallah in today's lecture we will be discussing the torsion. So in discussion of the torsion, so this is the content from the our curriculum. So in theory of torsion, we will be discussing the theory of torsion of solids and shallow and hollow circular shafts. So we'll be discussing both. We'll be discussing, spending more time on the inshallah theory of torsion of solid shaft. And then when we have understood and when we have completed our discussion on the discussion of solid shaft, and then inshallah we'll just extend that discussion to the hollow shaft as well. And then we'll see how the shearing stresses are distributed, because you have learned that whenever we apply a type of force, be it axial load or transverse loading, and then this torque, so they always create some sort of stresses. So we'll see that what type of stresses these torque cause in fact. And normally they cause the shearing stresses, and we'll see the distribution of these shearing stresses, and then definitely the effect of torque, the displacement that these torque cause are the angle of twist. They twist all the shafts. So we'll see how to calculate the angle of twist, and then we'll see the strength and stiffness of the shaft. Hopefully all this lecture will take about 4 classes. So we'll be able to complete that within 2 weeks, inshallah, and then we'll move on to the last topic of discussion. So to understand the torsion, we need to differentiate, we need to know the difference between the moment and a torque. I think you have already learned through your discussion on the previous topic in shear force and bending moment diagram, and then on the deflection of beam, and then you have also studied the theory of bending. In that you have learned a moment, what exactly the moment is. Today's lecture is all about the torque, so we'll see the difference between the moment and torque, and it's very crucial to know the basic concept, basic difference of the moment and torque. So the difference lies in use. So mathematically they are the same thing. You know, this is the product of the force and the perpendicular distance. Mathematically they are the same, but the way they affect certain civil engineering structure, that matters in fact. So moment creates different sort of stresses, moment creates different sort of displacement, different sort of distortion in a structure, and on the contrary, torque creates entirely different thing. So the difference lies in the use. And what is that difference in the use? So torque is used when there occurs a moment of the object. Torque is used when there occurs motion of the object, and is commonly used for wheels and rotating object. Whenever you will see a rotating object, you will see that the force behind that particular rotation is the torque. So anything that is rotating, the force that is forcing that particular structure to rotate is in fact torque. Mathematically they are the same. So what it does, it measures how strong the turning effect is. The torque tries to rotate. So the torque measures how strong is the turning effect. You can see that mathematically this is a force and this is the perpendicular distance, but the force that this particular force and this perpendicular distance is applying on this particular bolt is in fact torque. Or you can say if it is a hollow shaft, then it is a torque. Right? So let's see what exactly the moment is. So moment is used for static cases when a force acts from a distance but no moment occurs. There is no moment, there is no rotation. Then that would be moment. Examples: when we are finding the reaction from the supports on a loaded beam, we call it moments and not torque.
So this is a prime example. We tried to find out the shear force and the bending moment diagram, and then we tried to find out the flexural stresses, and then in last lecture, in the last series of topic, we also find out the deflection. And because of these loading, we know that these two loading will create sort of moment in this, and these moment will create bending stresses, and then all the accompanying displacement, like the angle of the slope, and then the deflection. As you can see that these two forces, this force into this perpendicular distance is creating a sort of moment. Force into perpendicular distance create a moment. So let's me explain this thing further for you people. Let me take the screen, white screen. So as far as the figure of the last slide is concerned, we had a hinge here, and we had a roller here, and we applied a force here, and we applied a force here, and we called that force W, and this force was W, and this distance till support was A, and also this distance to the support was A. So if we can say that these two things are equivalent to this thing, if this is a hinge and this is a roller, this W time A will create a moment like this. So I can apply a moment over here, and this W time A would create another moment, and that moment we can apply over here. So this is equivalent to this thing. So this load is creating a moment, and as a result of this moment, the beam will deflect something like this. There is no rotation. To understand the difference between the moment and the torque, let me draw another diagram of a beam. Let's suppose this is a beam. I'm trying to create an isometric view of this. Right. So this is a beam. Just you can apply a support, any sort of support. You can apply a hinge over here, and you can apply a roller over here, and this is beam resting on these two supports, and the length is L. All the basic things you already know, and I also explained to you in the initial lecture that we can also find out the centroid, and we can find out the centroidal axis. These two are the centroid of this beam, and when I connect this centroid with this centroid, so this would be the centroidal axis. This axis is the centroidal axis. And the plane through which this centroidal axis is passing through is the centroidal plane. And this plane will also over here, and this plane will pass through over here. Right. So let me draw this whole plane for you. This is the plane. So this is the plane which is passing through this beam. So if I cut this beam, you can see that there will be two sort of beam. One would be this one. Definitely this would be, because this is half B and this is half B, so there would be two beams. You can say like this, and this beam will be divided into two parts like this. So what would happen if you apply a load over this centroidal plane? To this load, we call that this load is a transverse load. We call this load as transverse load. And throughout in your understanding of theory of bending, you learn that the load are being applied on the transverse axis, and because of that application of the load, there would be shearing stresses and there would be bending stresses as well. But what would happen if you apply this load away from the centroidal axis, either towards the back or towards the front? So let me draw that to you. Let me take another screen, because you have
So that is the same beam that we showed in the last slide, and we said that this is the centroidal axis. And if you apply the load on this particular transverse load on this particular axis, there would be only bending and the shearing stress. It would cause only bending and the shearing stresses, right? So what if I apply a load over here? So this is a uniformly distributed load. Don't go towards, pay attention towards the length of this particular loading. The loads are the same. This is uniformly distributed load, but the only difference is that the load are not being applied on the centroidal axis, and the load is being applied away from the centroidal axis on the edge of the beam. So what would happen? These loading will try to twist. If I show you this view, so what would happen? This will look like this. And from your previous understanding, you know if the load is being applied away from the center, the effect of this load, you can say, would be this thing. This load be equivalent to a centroidal load like this, and because this is the centroid, so this load is being applied at eccentricity E. So the effect P into E would be a bending effect in here. P into, there would be a moment. Now this moment is creating a torsion in it. This is a torque now. This is creating twisting. The beam will now twist, right? So in a rectangular जो सेक्शन है उसके अंदर ये फिर बीम में ट्विस्ट आने की इसके अंदर लाने की कोशिश करेगा. तो हम जो बात समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि इन यूज़ है, एनी लोड कैन काज एनी सॉर्ट ऑफ इफेक्ट. व्हेन यू हैव अप्लाइड द लोड, अगर आप लोड को यहाँ अप्लाई कर रहे हैं सेंट्रोइडल के ऊपर, ठीक है, यहाँ अगर आप अप्लाई कर रहे हैं, तो ये लोड जो था सिर्फ और सिर्फ शेयरिंग काज कर रहा था और बेंडिंग काज कर रहा था. इसकी स्टडी इंशाल्लाह आपने, मैं ये ज्यूम कर रहा हूँ कि यू हैव ऑलरेडी लर्नड ऑल दोस थिंग, बट इफ यू हैवंट, आई एम कंटिन्यूइंग ऑन द डिस्कशन ऑफ ऑल दोस प्रीवियस टॉपिक एज वेल, एंड सो फार वी हैव डिस्कस सो मेनी थिंग्स, एंड आई थिंक इन द नेक्स्ट लेक्चर इंशाल्लाह आई विल बी अपलोडिंग वेरी सून द डिस्कशन ऑन शेयरिंग स्ट्रेसेस एज वेल, एंड देन विल मूव ऑन, एंड देन ग्रेजुअली इंशाल्लाह विल बी डिस्कसिंग द bending moment as well, the shear force bending moment diagram, and the bending stresses as well. So this particular load is creating the shearing stresses and the bending moment. This is not creating any sort of torsion in it. But if you apply the load away from here, अगर आप लोड को यहाँ ले जाते हैं, if you move load towards the right or towards the left, this will create a moment, and this moment will now create twisting effect in that. Okay? तो ये जो मैं चीज़ समझाना चाह रहा हूँ वो ये है कि आपके यूज़ क्या है, वो जो अफेक्ट है, जो फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, मैथमेटिकली दे आर ऑल द सेम थिंग, वेदर यू आर कंसिडरिंग द मोमेंट और यू कॉलिंग इट टू बी टार्क, मैथमेटिकली दे आर द सेम थिंग. बट व्हेन यू कॉल इट टू बी अ मोमेंट, द मोमेंट विल क्रिएट द फ्लेक्सुरल स्ट्रेसेस ओनली. मोमेंट विल क्रिएट द फ्लेक्सुरल स्ट्रेसेस ओनली. लाइक इन द केस, जैसे मैंने आपको लास्ट स्लाइड में दिखाया था कि अगर आपने ये चीज़ लगा दी है और इसके ऊपर आपने ये दो मोमेंट्स लगा दिए हैं, तो ये जो है दिस विल क्रिएट ओनली प्योर बेंडिंग. There will be no shearing stresses even. Because of this moment, there would be no shearing stresses. There would be only pure bending. But when if अगर आप इस लोड के ऊपर, इसी बीम के ऊपर आप इस किस्म का कोई लोड लगा देते हैं जो कि UDL है, तो then it will create a bending moment as well as the shearing stresses as well. So अब आपको ये conceptually देखने की ज़रूरत है कि भाई लोड किस किस्म का है, कहाँ लग रहा है, and what are the effect of those loads. समझ में आ रही बात? तो ये चीज़ समझने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि जो टार्क और मोमेंट का डिफरेंस है, ये टार्क और मोमेंट हम जब उसको किस टाइम हम उसको टार्क कहेंगे और किस टाइम हम उस मैथमेटिकल एक्सप्रेशन को मोमेंट कह रहे होंगे. अगर आप उसको मैथमेटिक्स के टर्म में जाके देखेंगे तो दे वुड बी सेम थिंग, 5 न्यूटन मीटर. अब दिस 5 न्यूटन मीटर कैन बी ए मोमेंट, दिस 5 न्यूटन मीटर कैन बी ए टार्क. बट to differentiate when would be moment and what would call it to be a torque, that would depend upon the effect that this particular moment or this particular torque would be creating. If it's trying to twist that particular structure, be it a circular or it can be a rectangular, it can be of any shape. If trying to twist that structure, then that would be a torque. And if it's trying to bend, then that would be a moment. Right? So moment is used for static cases. I hope you have understood this was about the torque.
अब आप देख रहे हैं कि ये जो फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, ये इस बोल्ट को, इस शाफ्ट को जो है रोटेट करने की, ट्विस्ट करने की कोशिश कर रहा है, एंड देन बिकॉज ऑफ दैट वी आर कॉलिंग इट टू बी अ टार्क. एंड इन दिस पर्टिकुलर केस दीज टू लोड्स are creating moment, and they are the two moment, and they are acting in the opposite direction on the extreme support of that beam, and these two moments are creating a bending moment, is creating sort of deflection and slope in this particular beam. So whenever there is torque being applied, so how would you analyze? बिकॉज आपने देखा है जब आप एक्सियल लोड लगाते हैं तो आपने उसका एनालिसिस देखा कि आप कैसे कर रहे हैं, और आपने जब उसके ऊपर मोमेंट या ट्रांसवर्स लोडिंग लगाई है तब आपने उसका एनालिसिस देखा है कि किस किस्म का एनालिसिस हो रहा है. तो मुझे अगर आगे होपफुली आपने अगर वो फ्लेक्सर फार्मूला और उसकी डेरिवेशन देखी है, तो वो नॉर्मली ये होता है कि जब कभी आप किसी बॉडी के ऊपर कोई लोड लगाते हैं तो सबसे पहले आपको विजुलाइज करना पड़ता है, आपको गेस करना पड़ता है कि किस किस्म की डिफॉर्मेशन ये लोड काज कर रहा है. लेट्स फॉर एग्जांपल मैं आपके लिए यहाँ 3 तरह के करता हूँ, और आपने ये देखते हुए अपने जहन में सवाल का जवाब खुद ढूंढना है कि अगर मैं ये रेक्टेंगुलर आप समझ लें वो है, और उसके ऊपर मैंने ये लोड अप्लाई कर दिया, ये कंप्रेसिव लोड है, ठीक है, और ये कंप्रेसिव लोड मैं इस पर अप्लाई करता हूँ, तो व्हाट वुड हैपन बिकॉज ऑफ दिस. अब आपकी इंट्यूशन ये कहती है, जो आपकी अंडरस्टैंडिंग है वो ये कहती है कि दिस विल ट्राई टू कंप्रेस, ठीक है. ऑन द कॉन्ट्ररी अगर मैं ये लगाता हूँ, समझ लीजिए कि यही बार है, अगर मैं उसकी डायमेंशन एग्जैक्ट नहीं लिख पा रहा हूँ, ये है, तब आपकी इंट्यूशन फ़ौरन कुछ कह रही है कि कुछ डिफरेंस आ गया है और ये इसके अंदर इफेक्ट कुछ और हो जाएगा, ठीक है. अब अगर ये मैं कहता हूँ कि ये क्रॉस सेक्शन है एक बीम का, दिस टू आर द सेम, दे आर द क्रॉस सेक्शन ऑफ अ बीम, ये आप समझ लें कि ये बीम था और ये इसका क्रॉस सेक्शन था जो मैंने आपको दिखाया था, और पहले केस में जो लग रहा था वो आपको ये चीज़ नज़र आ रही थी, ठीक. अब एक और हम बना लेते हैं यहाँ, यह आपके लिए मैं बना रहा हूँ, आई एम क्वेश्चन आई थ्रो टुवर्ड्स यू एंड यू विल हैव टू थिंक दिस इज द केस, दिस वन, ठीक है. यहाँ ये सिर्फ कंप्रेशन है, ये एक टेंशन है, ये जो है ये आपका बीम है, बीम के ऊपर ये कंप्रेसिव लोड लगा हुआ है, और ये जो है आपके पास बीम है और ये बीम के ऊपर ये टेंसाइल लोड लगा हुआ है, ठीक है. अब आपकी इंट्यूशन क्या कहती है कि यहाँ क्या हो रहा होगा, यहाँ क्या हो रहा होगा, यहाँ क्या हो रहा होगा, यहाँ क्या हो रहा होगा. तो यू कैन इमीडिएटली गेस the type of deformation, the type of displacement that these loading would create, these loading would cause in these structures, ठीक है. तो इस तरीके से होता ये है कि जब भी आप कुछ करते हैं तो सबसे पहले आपने आपकी इंट्यूशन, आपकी सिक्स्थ सेंस से आपको गैस करना होता है कि भाई ये जो मेरा लोड लग रहा है, ये लोड किस किस्म का, क्या उसके अंदर डिस्प्लेसमेंट काज कर रहा है, ठीक है. तो ये जो डिस्प्लेसमेंट होती है इसको हम गैस करते हैं. ये टोटल आपकी अपनी अंडरस्टैंडिंग है या आपका नॉलेज है सिविल इंजीनियरिंग का. ये मेरा ख्याल है कि अगर आपने डिफ्लेक्शन ऑफ बीम का जो फ्लेक्सुरल स्ट्रेसेस का डेरिवेशन की होगी तो उसके अंदर भी 3 स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं. तो किसी भी एनालिसिस के अंदर आप देखेंगे 3 स्टेप्स. इवन अगर आपने जो हुक्स लॉ का ये जो ये डेल्टा इज इक्वल टू PL/EA, दिस इज़ अ वेरी ओल्ड बड़ा बेसिक फार्मूला है, तो इसकी डेरिवेशन में भी अगर आपने की है तो आपने देखा कि ये जो ये जो चीज़ है, दिस विल बी क्रिएटिंग दिस सॉर्ट ऑफ डिफॉर्मेशन. ये जो इससे जो डिफॉर्मेशन होगी वो ये होगी, या इवन इससे भी जो डिफॉर्मेशन होगी वो ये होगी, लेकिन इससे जो डिफॉर्मेशन होगी वो ये नहीं होगी. यू नो ऑल दोस थिंग्स. या क्यों आप जानते हैं, ये आपकी इंट्यूशन है या आपकी अंडरस्टैंडिंग है जो आपने देखा है, ठीक है. तो अब आपके पास जिस टाइप की भी लोडिंग होगी तो फर्स्ट थिंग आपने देखना है कि वो क्या कर रही होगी. जिस तरीके से अगर ये मेरे पास सॉलिड एक शाफ्ट है और उसके ऊपर मैं ये एक टार्क लगा देता हूँ, तब आपकी इंट्यूशन क्या कह रही है, क्या ये इलॉन्गेट होगा या क्या ये कंप्रेस होगा. बिकॉज ऑफ द टार्क, अगर मैं इसके ऊपर ये टार्क लगाता हूँ तो क्या ये कंप्रेस होना शुरू हो जाएगा, क्या ये इलॉन्गेट होना शुरू हो जाएगा. तो डेफिनेटली योर आंसर वुड बी नो, नो इट विल नॉट इलॉन्गेट, इट विल नॉट कंप्रेस. अगर मैं इसके ऊपर ये लगा रहा हूँ तो क्या ये बेंड होना शुरू हो जाएगा, ये लगा रहा हूँ क्या बेंड होगा, डेफिनेटली इट विल नॉट बेंड. बट द मोमेंट आई चेंज द टाइप ऑफ लोड, अगर मैं इसके ऊपर लोड को ये लगा दूँ तो आप फौरन कहेंगे कि भाई ये तो अब बेंड होना शुरू हो जाएगा, ठीक है. और इसके टॉप फाइबर के ऊपर कंप्रेशन आने शुरू हो जाएगी, इसकी बॉटम फाइबर के ऊपर टेंशन आना शुरू हो जाएगी. सो दैट्स व्हाट योर इंट्यूशन इज, दैट्स व्हाट योर अंडरस्टैंडिंग इज, दैट्स व्हाट यू हैव लर्न सो फार. जो आपके 3 मंथ की अंडरस्टैंडिंग हुई है, दैट्स व्हाट यू हैव लर्न सो फार. तो इसी तरीके से जब आप किसी बॉडी के ऊपर टार्क लगा रहे हैं तो व्हाट वुड दैट टार्क क्रिएट, किस किस्म की डिस्प्लेसमेंट उसके अंदर क्रिएट करेगा, हमने उसको गैस करना है. एंड देन वो जो डिस्प्लेसमेंट होगी फिर हम देखेंगे जो हमारे नॉन रूल्स हैं, जो यूनिवर्सल सॉर्ट ऑफ रूल बन गए हैं, जिस तरह आपका हुक्स लॉ है,
हुक्स लॉ आपका क्या कहता है कि स्ट्रेसेस को स्ट्रेंस के साथ रिलेट कर देता है। अब हमने अब तक पढ़ा ये है कि वो स्ट्रेसेस हमने एक्सियल स्ट्रेसेस लगा दिए थे, हमने कंप्रेसिव या टेंसाइल स्ट्रेसेस लगा दिए थे, हमने नॉर्मल लोड लगा दिए थे, तो हमने सारे के सारे वो पढ़ लिए। लेकिन हुक्स लॉ इज वैलिड फॉर एनी टाइप्स ऑफ लोड, ठीक है। इफ यू आर अप्लाइंग shearing stresses, the Hooke's law is also valid there. If you are applying a torsional stress, the Hooke's law is also valid there. So Hooke's law is valid as long as your deformation are within the elastic limit, within the proportional limit. अगर आपकी प्रोपोर्शनलिटी जो है वो कायम है तो फिर आपका हुक्स लॉ वैलिड है, ठीक है। तो वो इलास्टिसिटी, प्रोपोर्शनलिटी और लिनियरिटी की तो डिस्कशन बड़ी लंबी है, जो कि मैंने उस पर बड़ा डिटेल लेक्चर दिया है। होपफुली अगर आपने देख लिया, इसको समझ लिया, तो उस डिस्कशन में हम नहीं जा रहे। तो हुक्स लॉ जो है वो प्रोपोर्शनलिटी के लिए है कि जहाँ तक आपकी प्रोपोर्शनलिटी है तो वहाँ तक हुक्स लॉ का वैलिड है। तो हुक्स लॉ जो है नॉट ओनली रिलेटेड टू दी एक्सियल स्ट्रेसेस और दी बेंडिंग स्ट्रेसेस, दे आर इट इज़ वैलिड फॉर दी टॉर्जन स्ट्रेसेस एज वेल। सो अगर आप उसके ऊपर टॉर्क लगा रहे हैं और वो अंदर ट्विस्ट होता है, ठीक है, तो फिर हम ये देखेंगे जो उसके अंदर डिफॉर्मेशन आ रही है। पहला स्टेप हमने ये बताया था ना कि आपने डिफॉर्मेशन को गैस करना है। सो आफ्टर गैसिंग दैट डिफॉर्मेशन यू विल रिलेट, कंपैटिबिलिटी आप करते हैं, जिसका आप दूसरा टर्म जो हम इस्तेमाल करेंगे वो कंपैटिबिलिटी है। तो वो फिर हम उसको कंपैटिबल करेंगे कि किस यूनिवर्सल लॉ, तो मैं ऐसे कह रहा हूँ, मतलब किस हमारे जो स्टैब्लिश रूल है उस रूल के साथ, वो किस रूल के साथ वो मैच करता है। एंड देन वी विल सी दी इक्विलिब्रियम के साथ हम करके वो उसका डेरिवेशन करते हैं। तो दीज आर द 3 स्टेप। यहाँ मैं आपको बता भी देता हूँ कि अंडरस्टैंडिंग एंड विजुअलाइजिंग द इफेक्ट ऑफ फोर्स एंड accompanying डिफॉर्मेशंस। यू विल हैव टू अंडरस्टैंड एंड विजुअलाइज। विजुअलाइज कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि कोई आपको मैं दिखा रहा हूँ, दैट विल हैव टू डू इट योरसेल्फ। यू विल हैव टू अप्लाई। आप या उसको विजुलाइज करेंगे कि यार मैं अगर इस पर लोड लगाता हूँ तो इसके अंदर किस किस्म की डिफॉर्मेशन आएगी। जैसे मैंने आपको बताया ना कि एक्सियल लगा रहे हैं तो आपको पता चल रहा है कि उसके अंदर कंप्रेशन आ रही है। आप उसको टेंसाइल लोड लगा रहे हैं, आपको पता चल रहा है उसके टेंसाइल या स्ट्रेचिंग आ रही है। तो द मोमेंट आपने जो उसको जिस टाइप का फोर्स लग रहा है, आपने उसको विजुलाइज करना है, द इफेक्ट ऑफ फोर्स एंड accompanying डिफॉर्मेशन एंड स्टेटिंग द assumption फॉर एनालिसिस। जब आपने विजुलाइज कर दिया फिर आप अजम्पशन करेंगे। जैसे मैंने आपको अजम्पशन बता दी ना कि जो डिफॉर्मेशन थी वो विद इन दी प्रोपोर्शनल लिमिट थी, तो ये आपकी अजम्पशन थी। अगर ये प्रोपोर्शनल लिमिट से एक्सीड करता है, मैं टॉर्क को या लोड को इतना लगाता हूँ कि प्रोपोर्शनल लिमिट से एक्सीड करता है, तब तो फिर आपका ये जो फार्मूले हैं, ये सारी की सारी चीज़ें, दे आर नॉट वैलिड। समझ में आ रही बात की? तो यहाँ ये चीज़ समझने की ज़रूरत है, यू विल हैव टू विजुलाइज द इन्फॉर्मेशन एंड देन यू विल हैव टू स्टेट द अजम्पशन कि आप किन अजम्पशन के ऊपर वो अपनी विजुलाइजेशन कर रहे हैं। The next step would be compatibility analysis. Then you will have to relate to any of the established rule, and normally that rule is the Hooke's law. And then we do the equilibrium analysis. फिर हम देखते हैं कि जो आपका बार था वो आपका इक्विलिब्रियम में था या नहीं। जाहिर सी बात है, अगर वो इक्विलिब्रियम में है, मूवमेंट उसके अंदर नहीं आ रही ना, उसके अंदर डिफॉर्मेशन आ रही है। अगर आपके फोर्स लगाने से वो बार मूव कर जाता है तो उसके अंदर स्ट्रेसेस काज नहीं करेंगे, तो फोर्स वुड भी उसकी फोर्स जो है उसके अंदर काइनेटिक एनर्जी उसके अंदर डाल दी और उस बार ने मोशन शुरू कर दी। तो मोशन इसके अंदर नहीं आ रहा है, इसके अंदर डिस्प्लेसमेंट आ रही है। सो दीज आर द 3 स्टेप्स दैट वी वुड बी डूइंग। ये समझने के बाद हम इन 3 स्टेप के अंदर करके इंशाल्लाह हम टॉर्जन फार्मूला करेंगे। तो यहाँ अगर आप ये 3 स्टेप्स को समझ लेंगे तो इंशाल्लाह जब हम अपने फ्लेक्सुरल स्ट्रेसेस की तरफ जाएंगे तो फिर आप देखेंगे कि वो आपको बहुत आसानी के साथ समझ में आ जाएगा फ्लेक्सुरल स्ट्रेसेस। तो सबसे पहला भी हम काम क्या कर रहे हैं, हम विजुलाइज करना चाह रहे हैं कि भाई टॉर्क लग रहा है, उसके नतीजे में क्या हो रहा है। तो वी बिगिन आवर डिस्कशन ऑफ टॉर्जन बाय कंसिडरिंग अ प्रिज्मेटिक बार। तो अगर आप यहाँ देख रहे हैं कि अजम्पशन शुरू हो चुकी हैं, हमने ले लिया है प्रिज्मेटिक बार। नॉन प्रिज्मेटिक बार का हम जिक्र नहीं कर रहे। प्रिज्मेटिक क्या है, वी ऑलरेडी डिस्कस दैट थिंग। ट्विस्टेड बाय टॉर्क टी एक्टिंग एट द एंड, और जो टॉर्क टी है वो एंड्स के ऊपर लग रहा है, ठीक है। ये हमने पहली बात की। कैसे लग रहा है वो आप ये इस फिगर के अंदर देख रहे हैं कि ये इस एंड के ऊपर से जो है वो उसको फिक्स है, और ये जो फ्री एंड है इसके ऊपर हमने ये एक टॉर्क टी लगा के रखा हुआ है। अब इसकी वजह से क्या आएगी, ट्विस्टिंग आएगी। अब वो ट्विस्ट कैसा होगा उसको हम देखने की कोशिश करेंगे। तो सिंस एवरी क्रॉस सेक्शन ऑफ द बार इज आइडेंटिकल, चूंकि प्रिज्मेटिक है तो अगर आप यहाँ सेक्शन लें, आप यहाँ सेक्शन लें, आप यहाँ सेक्शन लें, किसी भी पॉइंट पर आप सेक्शन लेंगे तो वो आपको पता है कि सेम होगा। एंड इज सब्जेक्टेड टू सेम इंटरनल टार्क। जो आपने अपने एक्सियल लोड्स का भी आपने देखा है कि लोड आप टॉप पे लगाते हैं और आप ये ज्यूम करते हैं कि थ्रू आउट दी जो डेप्थ है, थ्रू आउट द विड्थ है, द डिस्ट्रीब्यूशन या जो स्ट्रेस है दैट इज द सेम। दो मैंने आपको समझाया था कि वो एजम्पशन इतनी वो नहीं होती, लेकिन हमारी अंडरस्टैंडिंग के लिए हमने ज़्यादा एजम्पशन करनी है। तो हम ये एजम्पशन कर रहे हैं कि जो टार्क टी है वो थ्रू आउट द लेंथ जो है वो अमाउंट उसका सेम है, राइट। तो पहली एजम्पशन ये की कि प्रिज्मेटिक है, फिर हम ऑन द बेसिस ऑफ दिस अजम्पशन की प्रिज्मेटिक है, वी आर सेइंग कि उसको जो हर क्रॉस सेक्शन है हर जगह के ऊपर क्रॉस सेक्शन सेम। ये ऐसे ही है, अगर आप ये समझ लें कि आपने एक साइज़ के
कोइन ले लिए हैं, अगर आपने 5 रुपीज़ के कोइन और 5 रुपीज़ के कोइन को आपने एक लाइन के अंदर जमा कर दिया, एक लाइन के अंदर रख दिया, तो ये क्या हो जाएगा, ये एक शाफ्ट बन जाएगा। तो अब अगर आप उसको ट्विस्ट करेंगे तो हर कोइन जो है वो मूव कर रहा है, हर कोइन मूव करेगा, ठीक है। सिक्के जो हैं आपके, वो सिक्कों को अगर आपने लाइन के अंदर रख दिया है और उसको एक बार बना दिया है 5 रुपीज़ के सिक्के को और किसी बॉक्स के अंदर उसको बंद कर दिया है एंड दे आर वेरी क्लोजली अटैच, और जब आप उसको ट्विस्ट करेंगे तो फिर क्या होगा कि हर जो कोइन होगा वो उसके अंदर ट्विस्टिंग आएगी। तो ये वो इस तरह की चीज़ समझाने की आपको कोशिश कर रहा है, ठीक है। तो अगर ऐसी सिचुएशन होगी तो वी से दैट द बार इज इन प्योर टॉर्जन, ठीक है। वहाँ प्योर बेंडिंग की मैंने आपको कंसेप्ट समझा दिया था कि अगर सिर्फ और सिर्फ मोमेंट लगी हुई है तो हम कह रहे हैं प्योर बेंडिंग है। प्योर बेंडिंग बाज़ों का तो उस केस में भी आ जाती है अगर आपने ट्रांसवर्स लोडिंग लगाई हुई, बेंडिंग ये मोमेंट्स नहीं लगी हुई, एंड कपल नहीं लगे हुए, एंड यू हैव ओनली अप्लाइड द ट्रांसवर्स लोडिंग, इवन इन दैट केस सम टाइम प्योर बेंडिंग वुड अकर, एंड देन इंशाल्लाह जब हम बेंडिंग की तरफ जाएंगे तो उसके अंदर वो मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगा कि वो कैसे फिर प्योर बेंडिंग हो सकती है। तो प्योर टॉर्जन का मतलब ये है कि कोई और टाइप की चीज़ें नहीं हो रही। अगर इसके जिस तरह मैंने आपको बीम वाली मिसाल समझाई थी कि बीम में वहाँ टॉर्जन भी हो रहा है, वहाँ बेंडिंग मोमेंट भी हो रही है, ये जो मैंने आपको मिसाल समझाई थी मैं आपको दोबारा से थोड़ी सी बता दूं, ये पेन लेके, कि अगर ये सिचुएशन थी जैसे हमारे पास ये वाली, और लोड को मैंने यहाँ लगा दिया, ठीक है, ये बीम है, बीम इसी तरीके से अपनी सपोर्ट के ऊपर ये रखी हुई है, मैं इसको क्रॉस सेक्शन में आपको दिखा रहा हूँ। तो अब ये क्या होगा, यहाँ प्योर टॉर्जन नहीं है, यहाँ ये जो पर्टिकुलर लोड है, ये लोड को अगर मैं इक्विवेलेंट ले लेता हूँ तो इसका इक्विवेलेंट यहाँ ये आ जाता है, एक मोमेंट आ जाती है, एंड देन नाउ यू कैन रिमूव दिस लोड। सो दिस मोमेंट जो होगी, दिस मोमेंट इज नाउ क्रिएटिंग द ट्विस्टिंग, ये इसको ट्विस्ट करने की कोशिश कर रहा है, और फिर जो इसकी वजह से दूसरा इफेक्ट ये जाएगा कि एक बेंडिंग तो यूँ हो सकती है, दूसरी बेंडिंग यूँ भी हो सकती है। ये देख रहे हैं ना, ये चीज़, ये बेंडिंग, हम ये इस टाइप की लोडिंग अप्लाई नहीं कर रहे। तो अगर लोड को यहाँ लग रहा हो इस डायरेक्शन में, बीम के बजाय यहाँ लगने के इस डायरेक्शन में लोड कर, तो बेंडिंग की डायरेक्शन चेंज हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ ये जो बात समझाने की है कि प्योर टॉर्जन के वक्त सिर्फ और सिर्फ टॉर्जन लग रही होगी। ये जो केस आपके सामने यहाँ नज़र आ रहा है, ये केस आपको ये बता रहा है कि ये जो केस है इसके अंदर प्योर टॉर्जन नहीं आ रही है, इसके अंदर बेंडिंग भी आ रही है, इसके अंदर शेयर भी आ रहा है, और दे आर कंप्लीटिंग डिफरेंट सॉर्ट्स ऑफ लोडिंग। एनी हाउ, तो ये प्योर टॉर्जन की थोड़ी सी मैंने आपको बात बताई। टू विजुलाइज द डिफॉर्मेशन, अब ये जो टॉर्क लग रहा है इससे डिफॉर्मेशन आ रही है, इसको हम विजुलाइज करना चाह रहे हैं। तो हमने क्या किया, वी स्क्राइब कहते हैं कि उसके ऊपर कुंद करना, इस तरह आप पेन के ऊपर ये लिखवा देते हैं ना, नाम को कुरैद के नाम लिखवाते हैं, तो आपने इसके ऊपर एक लाइन लगा दी है। ये लाइन अगर आप देख रहे हैं तो ये ए से लेकर के जो बी तक की लाइन है, ये वाली लाइन, ये लाइन आपने इसके ऊपर मार्क कर दी, ठीक है। बिफोर डिफॉर्मेशन, बिफोर अप्लाइंग द टॉर्क, यू मार्क दिस लाइन, एक लाइन आपने मार्क की फ्रॉम ए टू बी, एंड देन नाउ यू आर अप्लाइंग अ टॉर्क ऑन इट। सो व्हाट वुड हैपन कि ये जो चीज़ होगी ए बी, ये बी पॉइंट मूव करके, क्योंकि दिस इज फिक्स, दिस एंड इज फिक्स, तो ये एंड अपनी जगह पे रहेगा, और ये जो होगा बी, ये बी मूव करके बी डैश के ऊपर चला जाएगा और ये डैश लाइन बन जाएगी। और ये अगर आप देख रहे हैं तो ये सेंट्रोइडल एक्सिस है, दिस इज द सेंट्रोइडल एक्सिस ऑफ दिस सर्कुलर शाफ्ट, ठीक है। ये सेंट्रोइडल एक्सिस का आपको कॉन्सेप्ट बता दिया। सो वी स्क्राइब द स्ट्रेट लाइन ए बी ऑन द सरफेस ऑफ द शाफ्ट बिफोर द टॉर्क इज अप्लाइड। आफ्टर लोडिंग दिस लाइन डिफॉर्म इनटू द हेलिक्स ए बी डैश, ये जो हेलिक्स से ये ए बी डैश बन गया। ये अगर इस लाइन को मैं इसके ऊपर सही सही लगा सकूँ, ये जो डैश लाइन है इसकी हम बात कर रहे हैं, ये ए बी डैश की, ये वाली लाइन। इनिशियली ये थी ये लाइन, ये वाली लाइन थी। अब ये लाइन जब आपने टॉर्क अप्लाई किया तो ये बी पॉइंट मूव करके बी डैश पे चला गया और ये हेलिक्स बन गया, ठीक है। अब इस हेलिक्स बनने से यहाँ जो एक एंगल बना है, ये एंगल, दिस एंगल वी आर कॉलिंग इट टू बी थीटा। और कुछ एंगल आप देखते हैं कि जो यहाँ भी बना है, ये वाला एंगल, क्योंकि पहले लाइन ये ऐसे थी, उसके ऊपर एक लाइन ये आ गई, ये लाइन थी ए बी। जब आपने ट्विस्ट किया तो ये लाइन मूव करके ये चलेगी। अब मेरे इस हाथ और इस हाथ के दरमियान में जो एंगल बन रहा है, ये भी एक एंगल है, ठीक है। और ये एंगल और इस एंगल को फिर हम रिलेट करेंगे कि दोनों किस तरीके से बराबर हैं या नहीं है। तो राइट नाउ अब हमने सिर्फ डिफॉर्मेशन को विजुलाइज करना है कि टॉर्क लगा है, टॉर्क से हमने एक लाइन स्क्राइब की थी, वो लाइन आफ्टर द एप्लीकेशन ऑफ टॉर्क मूव कर गई और इन अ फॉर्म ऑफ हेलिक्स ए बी था, वो ए बी डैश बन गया। होपफुली यहाँ तक अगर आपको चीज़ समझ में आई है, सो वी कैन मूव हैड। अब
जब आपने ये डिफॉर्मेशन को विजुलाइज किया, फिर आप अपनी एजम्पशन स्टेट करेंगे कि भाई अब मैंने अगर कंपैटिबिलिटी करनी है तो बिफोर द कंपैटिबिलिटी विल हैव टू डिफाइन योर एजम्पशन कि किस आप एजम्पशन की बेस पर कर रहे हैं. सो ड्यूरिंग द डिफॉर्मेशन द क्रॉस सेक्शंस आर नॉट डिस्टॉर्टेड. ये जो एजम्पशन है दे आर वेरी इंपॉर्टेंट एजम्पशन, और इसकी अंडरस्टैंडिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि इसमें कई चीज़ें ऐसी हैं जिसमें आप चीज़ों को डिसरिगार्ड करना और आपका समझना बहुत ज़रूरी है कि द क्रॉस सेक्शंस आर नॉट डिस्टॉर्टेड इन एनी मैनर. तो इसका मतलब ये है कि अगर जैसे मैंने आपको बताया था कि कोइन रखे हुए हैं, तो कोइन जो थे अगर आप एक एक कोइन को देखेंगे तो आप ये समझ लें कि ईच कोइन इज़ अ क्रॉस सेक्शन थ्रू आउट. यहाँ से अगर आपने बाहर शुरू हो रहा है और कोइन रखे हुए छोटे छोटे कोइन है, और हर कोइन आप देख रहे हैं कि सर्कुलर क्रॉस सेक्शन का है, तो ये सर्कुलर कोइंस हैं जो इसके अंदर सेक्शंस हैं, दे आर नॉट डिस्टॉर्टेड इन एनी मैनर, दे रिमेन प्लेन. वो जो है कोइन जो है वो प्लेन रहेगा, वो बिल्कुल ऐसे रहेगा, वो डिस्टॉर्ट नहीं होगा. एंड द रेडियस आर डज नॉट चेंज. 2-3 एजम्पशन की. अब 2-3 एजम्पशन की क्या एजम्पशन है उसको फिर यहाँ नीचे वाले इसमें कर रहा है. इन एडिशन द लेंथ एल ऑफ द शार्ट रिमेन कांस्टेंट. क्योंकि टार्क लग रहा है, अगर इसके ऊपर ये एक्सियल लोड आप लगा रहे होते तो फिर इसके अंदर एक्सियल एलोंगेशन भी आ रही होती. अब हम ये कह रहे हैं नहीं, इसके अंदर सिर्फ चूंकि प्योर टॉर्जन है, हमने इसीलिए वर्ड इस्तेमाल किया था प्योर टॉर्जन का. जब हम कह रहे हैं प्योर टॉर्जन है तो फिर हम ये कह रहे हैं कि इसके अंदर जो एक्सियल डिफॉर्मेशन है वो नहीं आ रही, उसकी जो लेंथ एल है वो डज नॉट चेंज. बाहर की जो ये लेंथ एल थी, ये लेंथ अब आपकी किसी भी सूरत में चेंज नहीं हो रही. ठीक है. सो बेस्ड ऑन दीज ऑब्जर्वेशन वी मेक दी फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन. ये ऑब्जर्वेशन हमने की और इनके ऑब्जर्वेशन की बेस पर हम एजम्पशन कर रहे हैं. हम कह रहे हैं कि सर्कुलर क्रॉस सेक्शन रिमेन्स प्लेन, डू नॉट वॉर्प. लेकिन अगर आप वो बीम की केस लेंगे तो बीम की केस में फिर आप ये एजम्पशन नहीं कर सकते. ये रेक्टेंगुलर बीम जब मैंने आपको बना के दिखाई ना, वो उसके अंदर अगर ट्विस्टिंग आ रही है तो फिर ये एजम्पशन नहीं हो सकती, क्योंकि हर सेक्शन के अंदर प्लेन नहीं रहता, उसके अंदर वार्पिंग आती है. वार्पिंग आप कह लें कि ये है, अगर मैं वार्पिंग आपको दिखाऊं तो ये अगर आपको इनिशियली प्लेन नज़र आ रहा है इस डायरेक्शन में, तो ये जो चीज़ हो रही है ये वार्पिंग इफेक्ट है. यहाँ से आप देख रहे हैं कुछ हो रहा है, यहाँ से कुछ हो रहा है, ये जो चीज़ हो रही है ये वार्पिंग है. ये प्लेन जो क्रॉस सेक्शन था, नाउ दिस इज नाउ अ प्लेन क्रॉस सेक्शन. ठीक है. और अब जब आप इसके अंदर ट्विस्ट करते हैं तो ट्विस्ट के अंदर ये चीज़ आनी शुरू हो जाती है. देखिए मैं ट्विस्ट कर रहा हूँ तो इसके अंदर वार्पिंग आ रही है. लेकिन हम यह बार की सूरत में ये कह रहे हैं कि इन द केस ऑफ द बार, ये जो शाफ्ट है सर्कुलर शाफ्ट, हम ये कह रहे हैं कि जिसके क्रॉस सेक्शन है वो सारे के सारे प्लेन रह रहे हैं और उस क्रॉस सेक्शन के अंदर कोई वार्पिंग नहीं आ रही. और हर क्रॉस सेक्शन जो है वो फिर परपेंडिकुलर है. अगर वार्पिंग आएगी इसका मतलब ये कि अगर ये देखें ना, ये जो मैंने आपको इस केस में भी बताया था कि यहाँ अगर ये एक प्लेन है तो इसके ऊपर ये परपेंडिकुलर है, और ये परपेंडिकुलर किसी भी पॉइंट के ऊपर अगर मैं ले जाऊँ तो ये परपेंडिकुलर है इफ़ दिस सेक्शन रिमेन्स प्लेन. बट इफ़ इट वार्प्स तो फिर ये परपेंडिकुलरिटी जो है वो इसकी चेंज हो गई. अब ये लोड जो है इस जगह के ऊपर परपेंडिकुलर नहीं है, इस जगह के ऊपर नहीं है, किसी एक जगह के ऊपर हो सकता है, लेकिन तमाम सेक्शन के ऊपर प्लेन जो है वो परपेंडिकुलर नहीं होगा. तो यहाँ वो ये बात समझाने की कोशिश कर रहा है कि क्रॉस सेक्शन रिमेन्स प्लेन, डू नॉट वॉर्प एंड परपेंडिकुलर टू द एक्सिस ऑफ द शाफ्ट. ये जो एजम्पशन है ये सर्कुलर शाफ्ट के लिए काफ़ी एजम्पशन से मेरा समझ ले कि दिस इज ट्रू, दिस इज फैक्ट. लेकिन अगर आप ये सेक्शन को चेंज करते हैं और ये रेक्टेंगुलर सेक्शन ले आते हैं तो फिर ये आप ये एजम्पशन नहीं कर सकते. वो हम देखेंगे जब नॉन सर्कुलर रेक्टेंगुलर की तरफ हम जाएंगे तो फिर हम देखेंगे कि वहाँ क्या होता है. सेकेंड, ये हम कह रहे हैं कि क्रॉस सेक्शंस डू नॉट डिफॉर्म, देयर इज नो स्ट्रेन इन द प्लेन ऑफ द क्रॉस सेक्शन. ठीक है. ये जो डिफॉर्म होने के वाप जब नहीं हो रहा तो इसका मतलब ये है कि वो परपेंडिकुलर है. ठीक है. तो फिर इसका मतलब ये कि डिफॉर्म नहीं हो रहा. तो ये पहली और दूसरी को आप इस तरीके से लिंक कर सकते हैं, क्योंकि हम कह रहे हैं कि क्रॉस सेक्शन रिमेन्स प्लेन, डू नॉट वार्प और रिमेन परपेंडिकुलर. ठीक है. उसका जो एक्सिस है वो उसके ऊपर परपेंडिकुलर है. तो इसके नतीजे में ये होगा कि क्रॉस सेक्शन डिफॉर्म भी नहीं होंगे. थर्ड में हम कह रहे हैं द डिस्टेंसेज बिटवीन द क्रॉस सेक्शन डू नॉट चेंज, द एक्सियल नॉर्मल स्ट्रेन इज जीरो. अगर आपके पास इसके अंदर ये एक्सियल डिफॉर्मेशन आ रही होती तो फिर जो इसके सेक्शंस थे वो सेक्शन एक दूसरे से अवे होना शुरू हो जाते. ये जैसे आपने सिक्के रखे होते हैं ना, वो सिक्के एक दूसरे के साथ अवे होना शुरू हो जाते. और इसके अंदर चूंकि हम ये कह रहे हैं कि प्योर टॉर्जन है, वी आर सेइंग देयर वुड बी नो एक्सियल डिफॉर्मेशन, ऑन द बेसिस ऑफ दैट वी कैन से वी आर assuming that the distances between the sections, cross sections do not change and the axial normal strain is zero. ठीक है. सो बिफोर गोइंग टू दिस कंपैटिबिलिटी विल टेक अ शॉर्ट ब्रेक और फिर हम नेक्स्ट उसमें इंशाल्लाह ये कंपैटिबिलिटी को